Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we'll start with chapter number second, that is principles of management. और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फेयोल का एंड टेलर का, इनके प्रिंसिपल्स, इनकी टेक्निक्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हमने बात करी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल और इनमें प्योर साइंस के प्रिंसिपल में क्या फर्क है। जब हम बात करते हैं प्योर साइंस प्रिंसिपल, दे आर रिजिड इन नेचर, but when it comes to management principle, they are flexible in nature. They change with the change in environment. Principles are the general guidelines and techniques are the series of steps. Values being the form after research and work situation, values are the ethical rules that have to be followed. आगे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। These are the principles of, these are the features of management, that is also called the DNA. So the first feature is the general guidelines. These are the only general guidelines. They are do not provide any ready-made solution. ठीक है, कि भाई इस प्रिंसिपल्स पे या इस सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, हम इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी रेडीमेड सॉल्यूशन। द सेकंड वन इज कंटीजेंट। व्हाट इज कंटीजेंट? इट्स एप्लीकेशन डिपेंड्स हेवीली ऑन द प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट। चेंज क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, अप्लाई होगा। जब हम बात करते हैं फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, हर जो भी प्रिंसिपल होगा वो हमेशा प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से ही बनेगा। उसके अलावा हमारे पास फ्लेक्सिबल है, दे आर नॉट रिजिड इन नेचर, दे आर फ्लेक्सिबल, इट चेंज विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। मेनली बिहेवियर दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग, दे आर अप्लाइड ऑन एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय बिहेवियर इज चेंजेबल। That is why they are mainly behavioral in nature. Cause and effect relationship है, कोई सिचुएशन होगी तो ही उसका इम्पैक्ट आएगा। विल चेक कि इस कॉज में इसका इम्पैक्ट लगा सकते हैं। 100% इफेक्ट हमें पता नहीं लग सकता, बट विल फाइंड आउट अ समथिंग पार्ट ऑफ इट कि हाँ यार इतना इम्पैक्ट इस चीज का हमें देखने को मिल रहा। And when it comes to last one is universal applicability. It applies to all the type of organization, whether it is big or small, whether it is profit making, non-profit making, any type of organization. Now, our next topic is the importance of principles of management. So, the first point is the insight into reality. When it comes to the principles of management, enable manager to learn from the past mistake and make routine decision making highly efficient. वो अपनी past mistake से सीख सकते हैं और अपनी routine की decision making को क्या करते हैं, efficient बनाते हैं. They provide them a good knowledge. Optimum utilization of resources. They said that we have to replace the trial and error method, hit and miss method with the cost and effect relationship. It increases efficiency, ensure maximum output with the minimum cost. Now, the scientific decisions promote logical, thoughtful decision based on objective rather than blind faith. Like what we can say more about this, कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई हिट एंड ट्रायल मेथड साइंटिफिक मेथड पे जाएं, किसी भी चीज को कर देखें, उसके बाद उस प्रिंसिपल को क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, आपको सपना आया एक रात में, आपने सोचा कि नहीं यार ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा ना, यू हैव टू गो साइंटिफिकली। When it comes to the next, that is changing environment, modify general guideline to train manager and implement necessary organizational shift. जो भी environment में change आते हैं बेटा, उसके according वो principles के अंदर भी क्या करते हैं, change करते हैं। Now the social responsibility, it guide manager to achieve goals while creating value for customer, environment, and the associates and the employees as well. Now the training and research as the core of the management strategy, generating new ideas in modern aptitude testing. Now, the next topic is the scientific principles of management, that is given by F.W. Taylor. The scientific means exactly what you want men to do and seeing what they do it in the best and the cheapest way. When it comes to F.W. Taylor, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, एक स्टील कंपनी में। प्रॉब्लम था कि वहां पर प्लानिंग नहीं थी, मेथड जो थे वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने सोल्यूशन दिया कि आप साइंटिफिक चीजों को अप्लाई करें और उससे उनकी इफिशिएंसी को क्या कर दिया, उन्होंने इंक्रीज कर दिया। आगे जब हम बात करते हैं तो टेलर ने 4 कोर प्रिंसिपल्स दिए बेटा। सबसे पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मींस एवरीथिंग शुड बी डिसाइड by the scientific methods, not by the wish and will of the method, not by the hit and run method. ठीक है, so this intuition and hit and miss method maximize efficiency by developing one best method through work study and analysis. Now the second one is harmony and not discard.
as we know, there are two type of group in organization. One is the employer, one are the management group, and second one is the employees. They both are the rival of each other. They are both are thinking, they both thinking negative about each other. They both thinking that they are good for nothing. But it in long term, it beneficial. It's not beneficial for the organization. So we have to change the attitude for each and everyone. हमारे को दोनों का attitude change करना पड़ेगा. तो it requires a complete mental revolution. हमारे को दोनों के attitude change करने पड़ेंगे. हम attitude कैसे change कर सकते हैं? हम attitude change कर सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर जो है, जो गेन है, वो एम्प्लॉयज के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे. और उसी के बिहाफ पर एम्प्लॉय क्या करेंगे? अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी. नाउ अब जब हम बात करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, हमने एटीट्यूड को पॉजिटिव करनी है. नाउ द कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड. आफ्टर द पॉजिटिव एटीट्यूड, नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि यार ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये चलता रहना चाहिए. इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ग्रो करेगा. सो नाउ बिफोर डिसाइडिंग अप एनी टास्क, वी हैव टू लाइक what suggestion from the employees. We need suggestion, we need initiative. We'll ask from them कि इसको और हम बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं. अगर हमें उनका इनिशिएटिव अच्छा लगा तो हम उनको रिवॉर्ड देंगे. इसकी वजह से भी एक मोटिवेशन क्रिएट होगा एम्प्लॉइज के अंदर. एंड द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. हमेशा अगर आपको एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना है तो आपको उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ेगा ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो. उनकी जब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स. नाउ विल कम टू द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो द फर्स्ट टेक्निक इज दैट इज फंक्शनल फॉर्मेचर. सो द फंक्शनल फॉर्मेचर, in organization, we have divided the organization into two parts. The first is planning and second one is production. And we have appointed 8 supervisors, 4 under planning department, 4 under production department. And these are specialized in their work. So now in planning we have decided, we have appointed root clerk. Root clerk क्या बताएगा? हमें sequence बताएगा. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हमें क्या बताएगा? जनरल इंस्ट्रक्शंस बताएगा. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हमें क्या बताएगा? कि कितने टाइम में उस टास्क को करना है. डिसिप्लिनियन ऑर्डर का ध्यान रखेगा कि सारे काम ऑर्डर में हो रहे हैं या नहीं. When it comes to production in charge, gang cause हमें सारे gang cause is the most important thing. ये MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है. What is gang cause? Who arrange all the things, men, material, everything for the workers. स्पीड बॉस, टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क हो रहा है या नहीं हो रहा है. रिपेयर बॉस, अगर कोई मेंटेनेंस आ जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और इंस्पेक्टर होगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए. ठीक है. फिर हम बात करते हैं, सेकेंड हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन? टेलर इंसिस्ट करते हैं कि आप प्रोडक्ट के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन लेके आए, उसकी वजह से वैसे ही आपकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. When it comes to simplification, simplification means unnecessary जो diversification है, unnecessary जो diversification आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर कर रखे हैं, आप उनको क्या कर दीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए. और अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर क्या कीजिए? फोकस कीजिए. ठीक है. जब हम बात करते हैं बेटा कुछ स्टडीज इसके अंदर दी गई, तो सबसे पहले आती है मेथड स्टडी. मेथड स्टडी ये कहता है कि फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द जॉब. So finding the one best way to perform a job is minimize production cost and maximize quality. The second is motion study. What is motion study? Is all about eliminating the unnecessary motion of employee. So we have to done a study on the employee and we'll find out the motion are positive and productive and unproductive, and we have to eliminate the unproductive motion of the employee, or those are known as motion study. Now the time study, using the stock cost to determine the standard time required to perform a job. कितना टाइम हमें लगेगा उस टास्क को परफॉर्म करने में या उस टास्क को कंप्लीट करने में. एंड द नेक्स्ट इज फटीग स्टडी. फटीग स्टडी इज डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी. एज वी नो कि काम कर करके एम्प्लॉय थक जाता है, तो उस थकने के बाद में उसको एक क्या दे देना? गैप देना, जिससे उसकी इफिशिएंसी वापस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो दैट स्टडी इज नोन एज फटीग स्टडी. कि एक टाइम गैप के बाद में आपने उसको क्या दे दिया? गैप दे दिया, उसकी वजह से उसकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, उसके बाद में वो वापस अपनी इफिशिएंसी क्या कर लेगा? गेन कर लेगा. जब हम आगे बात करते हैं बेटा, उसके बाद अलावा एक डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम भी होता है. ये बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को अलग अलग रेट से वेजेस देंगे. फॉर एन एग्जांपल, हमने स्टैंडर्ड टारगेट सेट के 10 यूनिट्स डे का,
और स्टैंडर्ड रेट हम देंगे 50 यूनिट की। एक एम्प्लॉय था जो एफिशिएंट वर्कर था, उसने 12 यूनिट्स बनाए, तो विल गिव देम अ हायर वेजेस ऑफ 60 पर यूनिट, तो द टोटल वेजेस कम टू 720 रुपीज। When it comes to inefficient worker, जब हम inefficient worker की बात करेंगे, अगर उसने यूनिट कितने बनाए, सिर्फ 8, तो हम उसको स्टैंडर्ड से भी कम देंगे, तो हम उसको देंगे 40 पर यूनिट की वजह से। इस वजह से क्या होगा बेटा, एम्प्लॉय क्या करेंगे, खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा, उसको लगेगा कि एक मैं मिनिमम वेजेस तो ऑर्गेनाइजेशन से लूं। एंड नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन? कि भाई एक दूसरे के ऊपर जज करना, एक दूसरे को जज करना, एक्सप्लॉइट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग क्या करते हैं, एक पूरे बड़े टास्क को हमने छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, और स्पेशलाइज एम्प्लॉइज को हमने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। वो स्पेशलाइजेशन जैसे जैसे वो टास्क को करते जाएंगे, उस वर्क के अंदर क्या होते जाएंगे, स्पेशलाइज होते जाएंगे। दो दैट पार्ट इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमारे लिए स्पेशलाइजेशन बढ़ाएगा और इंप्रूव करेगा हमारी इफिशियंसी को। सेकेंड बात करते हैं हम लोग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स the power to make decision, and responsibility means the complete the task on time. So Fayol insists that there are balance between authority and responsibility. If you give an access of authority, they misuse the power. If you give access of responsibility, they didn't complete the task on time. So there should be a balance. So balancing between the power to take decision with the obligation to complete the task. फायदा इसका क्या होगा, मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा और डेडलाइन जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो पाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट सेंट्रलाइजेशन मींस, द पावर इज इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर एम्प्लॉय के पास में कुछ ना कुछ पावर होगी, पर व्हेन इट कम्स टू सेंट्रलाइजेशन द पावर इज ओनली इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल। फायदा क्या होगा, एनेबल द फास्ट ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रिक्ट टॉप लेवल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या फॉलो करना चाहते हैं। Next is the principle of order. There should be a fixed place for men and material in the organization. There should be no wastage of time in finding those personal or those things. So no wastage of time and energy searching for the man and material. आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स द पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक पर्सन एक ही बॉस से क्या करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा। इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे बॉसेस के बीच में। इफ द पर्सन रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, इट क्रिएट्स ईगो क्लैशेस, इट क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है। Next is unity of direction. There are so many diversification in the organizations. There are so many unit, medical unit भी होगा, कॉस्मेटिक यूनिट भी होगा, हम गारमेंट यूनिट की भी बात कर सकते हैं। सबके डायरेक्शन अलग अलग हैं, सबके प्रोडक्ट अलग अलग हैं। दे हैव देयर ओन माइंडसेट, बट व्हाट दे हैव टू थिंक, उनको एक कॉमन गोल हमेशा याद करना है। द यूनिट विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लांट एंड इंश्योर यूनिफाइड एफर्ट्स एंड नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। This diagram is strong according to this. Discipline. Discipline means the conduct. Discipline means the commitment that is given by organization to the worker. The same rules and regulation for each and everyone, and the commitment. The main thing in discipline is commitment. If you commit something to the worker, you have to do it. Next बात करते हैं हम लोग scalar chain. What is scalar chain? That is a formal line of authority that is strictly followed in the organization. If you have to provide some information from F to A, so you have to go with F to E, E to D, D to C, C to B, B to A. Okay. In case of emergency, if you need to contact some person, that is known as gang plan. That have to be happen on the same level. वो same level पर भी हो सकता है और वो किसी दूसरे लेवल के पर्सन से भी क्या कर सकता है, बात कर सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग, इसके अलावा फेयोल के जो प्रिंसिपल तब बचे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। आपको हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पहले प्रायोरिटी देनी है खुद के ऑब्जेक्टिव से। सपोज कीजिए मेरे घर में शादी है और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, तो मुझे ऑब्जेक्टिव, मुझे प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर? या फिर सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि आई एम द हेड ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट, कोई रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल था फॉर 100 रुपी, पर मैंने मेरे रिश्तेदार से उसको 120 के अंदर परचेज करवा दिया कंपनी को, तो वहां पर भी मैंने मेरा खुद का इंटरेस्ट देख लिया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से पहले। सो दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन,
fair and just remuneration to the employees according to the paying capacity of the organization. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा तो उस रोल की सैलरी भी क्या होगी, छोटी होगी. पर ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा होगा तो उस रोल की सैलरी ज्यादा होगी. तो वो पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हमें कितना रेम्यूनरेशन देना है. पर हमारे को मिनिमम वेजेस एक्ट का ध्यान रखना है कि मिनिमम तो होना ही होना चाहिए. नेक्स्ट इज इक्विटी. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग. सबको सेम माना जाएगा, मेन वुमेन. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन. आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन नहीं करने हैं एम्प्लॉयज के. अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन करते हैं तो उनकी वजह से उनकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. सो फेयोल इंसिस्ट करते हैं, फेयोल बोलते हैं स्टेबिलिटी बनाकर रखनी चाहिए कि एक स्पेसिफिक टाइम तक आप उनका ट्रांसफर और टर्मिनेशन ना करें ताकि उनकी इफिशियंसी बनी रहे. एंड द लास्ट वन इज दैट इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मींस यू हैव टू टेक सजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज. ठीक है, आपको सजेशन लेने एम्प्लॉय से कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या सजेशन है इस काम के लिए. अगर आपको सजेशन अच्छा लगता है तो आप उनको रिवॉर्ड करें. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. और इनिशिएटिव किससे मिलता जुलता है बेटा, मिलता जुलता है ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सॉरी, अब अगर हम टेलर के प्रिंसिपल की बात करेंगे तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म से ये मिलता जुलता है. आगे हम लोग बात करेंगे इनिशिएटिव. सॉरी, एस्पिरेंट डी ग्रॉस रिप्लेस आई विद बी. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमने कर दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैंने कर दिया, इंस्टेड वी से वी ऑल डू इट. ठीक है. अगर कोई टास्क रह गया है, कोई वर्कर उसका टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया तो हमें उसका टास्क क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सके, उसके प्रोडक्शन के लेवल को क्या कर सके, अचीव कर सके.